यस महेश जी, अनम्यूट अनम्यूट करो पहले। या मेरा नाम महेश अग्रवाल है, मैं हैदराबाद से हूँ। मैं स्टील बिजनेस में हूँ। अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ स्टील की लोकल में। तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ इंटरनेशनल में भी कुछ एक्सपोर्ट भी करना है। कुछ जानकारी के लिए मैं ज्वाइन किया हूँ। स्टडी ओनली लोकल पे क्या ट्रेड कर रहे हैं? स्टील फैब्रिकेशन स्टील होता है मेरा, शीट्स प्लेट्स जो हेवी मशीनरी वगैरह बनती है उसको लगता है ये। तो मुझे ऐसा नहीं कि स्टील में करना है, मैं आई एम ओपन विथ ऑल प्रोडक्ट। एक्चुअली आज सुबह से मैं सारे मैडम के ही जो है सारे 5 वेबिनार से सारे वही देख रहा था। ऐसा है कि पूरे एक दिन में सारे देख डाला। ग्रेट ग्रेट। तो बस कुछ डाउट्स भी है, जब अपन चालू होंगे मीटिंग तब बात डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। या मैक्स सर। Hello, good evening, ma'am. I am Mac here. Actually, I am a rice exporter. Last 2 days before, we had a meeting, and I'm very privileged to join your group, Global Fortune. Hopefully, I'm looking for a export as soon as possible, a consignment. So I have exported already rice, basmati, which I have procured from Haryana. So I have got my IEC, APEDA, food safety license, RCMC, and GST, and I am a member of Chamber of Commerce of Hyderabad as well. So because of some constraints of COVID, I had to stop from my client. So I took a short break, and meanwhile, from last 8 months, I am into real estate and doing ventures. I have joined a very good company, Shatabdi Township. So I'm working as assistant general manager, sales. But my core passion was export. So that's the reason I am back here. Thank you. That's great. Welcome. Yeah, Shubham. Shubham, are you there? Yeah, hi. You are also new. Introduce yourself. Yes, Patel, I was working in a manufacturing company almost a year ago. I met with an accident 1 year ago. So from that, I was on bed for at least 7 months. And now I'm planning for business. But obviously, my parents are against that. They want me to do some designing course and do a job. Right now, you are running your company or what? No. मी मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीमध्ये काम करत होतो ऑलरेडी, म्हणजे ऍज अ जॉब पुण्यालाच. बट आता म्हणजे मला एक्सपोर्ट करायचं, म्हणजे एक्सपोर्ट बिझनेस करायचा आहे, बट घरचे त्याच्या अगेन्स्ट. Have you selected any product or what? म्हणजे माझं प्लॅनिंग असं चाललंय की ऍग्री मध्येच करायचं, बिकॉज घरी शेती वगैरे पण आहे. सो मी माझंच प्रोडक्ट तिथं म्हणजे एक्सपोर्ट करू शकतो. For non-Hindi people, if anyone is talking in Marathi, that is your responsibility to tell them people that no Marathi, only Hindi. Shubham, only Hindi allowed here. Okay, sorry. Hindi or English. Okay. हाँ. अरे नए लोगों को पता नहीं ना, तो मैक का चेहरा में देख रही थी कि वो सरप्राइजिंगली he is want to understand but he can't. Okay, sorry. Actually, I was trying to get his words, what he's speaking. Yeah, I can understand by your face that you are trying to get it, but you can't. No, I was getting stuck. Rule for every meeting, if you are like for non-Marathi people, if anyone is speaking in Marathi, you will update, like you will break them and you tell them that no Marathi, only Hindi or English. Okay, better English. Yeah, whatever, either or. Okay, Shubham, great. Yes. Welcome here. Thank you, ma'am. चलो बाकी वाले भी अगर अपना इंट्रोडक्शन दे तो एटलीस्ट नए लोगों को पता तो चले कौन है यहाँ पे कनेक्टेड. So start one by one briefly, and then we will start. Anushri, unmute.
Yes, Anushri here from Pune. मैडम को मैं पिछले 6 महीने से फॉलो कर रही हूँ and looking forward for export business. Okay. Next. Nikhil, Bhavna, Sugat, Sheetal. कहाँ गए सारे? हेलो एवरीवन, आई एम निखिल। अभी मैम के साथ 2 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और अभी पिछले हफ्ते ही हमने बनाना एक्सपोर्ट किया है ग्रुप शिपमेंट में, तो अभी मैं एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो अभी सीख रहे हैं हम सब। ऑल द बेस्ट न्यू मेंबर्स। Great, great. Great. चलो next. Sugat, unmute. Good evening all. Myself Sugat Wankede. More than 2 years I am with Sushma madam, but now only I have started. Frankly speaking, the whole thing understood the import export things, and I have connected in last banana shipment also. So all the best for the new students. चलो next. Yeah, Santosh ji, Sheetal, yeah. Good Yes, evening to Sheetal. all. Myself Sheetal. I'm from Dhule district, Maharashtra. From last 2 months, I am with ma'am. Just now, I have completed the online course, and I have completed some formalities like RCMC certificate and all. So, in coming days, I'm trying to export onion. Let's see, and all the best for new students. चलो next. Yeah, Santosh ji. Yeah, Santosh ji, where are you? No, we can't hear you. Hello. Yes. Now. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम संतोष दास है, मैं ओडिशा भुवनेश्वर से हूँ। दिसंबर 7 और 8 तारीख 2019 को यहाँ पे मैडम ने 2 दिन का यहाँ पे एक सेमिनार किए थे, हम लोग अटेंड किए थे 8-10 जन इधर। तब से मेरा एक्सपोर्ट बिजनेस करने का बहुत इच्छा था कि कुछ करूं बिजनेस रिलेटेड और अलग प्रकार का कुछ बिजनेस करूं, इसलिए उसी दिन से मैं बिजनेस शुरू कर रहा हूं। ऑल ओवर इंडिया मेरा कैशनट मेन प्रोडक्ट है। उसके अलावा मैं अभी तक का 6 कंसाइनमेंट कर चुका हूं न्यूजीलैंड के लिए, और अभी हम लोगों का अप्रैल महीने में एक कंसाइनमेंट जाने वाला है, जो कि इसमें दालचीनी है और ग्रीन कॉफी बीन्स है, 2 चीज। दालचीनी के लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा था, मैं टीम में अपडेट किया था, और ये स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेट के लिए अभी उसको अप्लाई भी कर लिया हूँ, शायद वो 1 हफ्ते का अंदर मिल जाएगा। तो फिर हम लोग वो दालचीनी का भी शुरू करेंगे। और मैं ये कहूँगा, ये जो प्लेटफॉर्म है ग्लोबल फॉर्च्यून का प्लेटफॉर्म है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। खाली आप ज्वाइन करने के बाद डिसकंटिन्यू मत होना, सिस्टम के साथ जुड़े रहना, जो भी सीखने को मिलेगा इसको आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू कमर्स। Yes, Bhavna. Hello everyone, good evening. Sorry, I'm in traveling, so मैं कैमरा नहीं ऑन कर सकती बिकॉज नेटवर्क इशू है। मैं मैम के साथ लास्ट 1 ईयर से हूँ, बट मैं उनको काफी सालों से जानती हूँ, बट प्रोफेशनल रिलेशनशिप सिंस लास्ट 1 ईयर, एंड आई एम द मोस्ट रेगुलर पर्सन। कोई आए ना आए, मैं तो हरदम रहती हूँ, बिकॉज आई नो व्हाट आई कैन गेन फ्रॉम दिस सेशन। तो मैं भी सजेस्ट करूंगी सबको कि तुम शिपमेंट करो या ना करो, बट सेशन तो अटेंड करो। टिल नाउ आई हैव डन द 2 शिपमेंट्स, 1 कोकोनट 1 बनाना, एंड मेरे अभी कुछ अदर्स शिपमेंट्स भी प्लान है, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। थैंक्स। नीरज जी, आप भी बहुत दिनों बाद ज्वाइन हुए हो।
Hello, Neeraj ji, are you there? Hello. Yeah, yes, we can hear you. Yeah, ma'am. Hiya, ma'am. Good evening. How are you? Yes, we are fine. How are you? Okay, ma'am. I'm fine, ma'am. Just introduce yourself. Ma'am, I'm Neeraj Dhingra from D5 Shrink Insulation Private Limited. We are manufacturer of PVC heat shrinkable sleeves. We are based in Haryana. It's Bahadurgarh, near to Delhi. We have not done any import-export till date. Good. So सबके लिए this is just a brief. बहुत सारे लोग हैं कि now we are thinking about the timing also. I need to think. Okay. Just give me 5 minutes. One important call is here. So you all please connect each other. I will join you within 5 minutes. हेलो एवरीवन। क्या कोई राइस में एक्सपोर्ट किया है अभी तक? एनीवन नो अबाउट द राइस बासमती? नो नो वन। अरे महेश भाई, आप तो अपने अपनी है भाई, आपसे तो अच्छी मुलाकात है। कोई और अदर देन फ्रॉम हैदराबाद? आई डोंट थिंक। क्या सबने अपना प्रोडक्ट फाइनल किया है क्या? नहीं सर, मैंने तो प्रोडक्ट तो फाइनल नहीं किया अभी मैडम कल ज्वाइन किए हैं, कल से बस रिसर्च चल रहा है व्हाट इज व्हाट, इवन दो आई हैव 1% नॉलेज, ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट शुड आई प्रोसीड विद। अच्छा, बाकी लोग? नो रिप्लाई। Anyone planning any consignment this week or next? अभी कैशू के बारे में किसने बात की थी? हाँ जी, मैं संतोष दास बोल रहा हूँ भुवनेश्वर से। बोलिए। अच्छा, आपने किया था क्या कैशू का? कैशू नहीं, कैशू हम लोग ऑल ओवर इंडिया का हमारा सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई। तो अभी इंटरनेशनल क्या, न्यूजीलैंड में हमारा सप्लाई हो रहा है। इधर उड़ीसा में एक प्रोक्योरमेंट एजेंट है, उनका एक अच्छा रिलेशन है न्यूजीलैंड में, उनका बायर। तो हमने फर्स्ट टाइम उधर भेजे थे, 1 टन का लिए थे ग्रीन वेजिटेबल, जैसे कि रॉ टमाटो, ग्रीन चिली एंड लेमन, 3 वैरायटी लिए थे। तो जाते टाइम ये 600 केजी हम फाइनली भेज पाए, क्योंकि बीच में जो टाइमलाइन के अंदर बहुत सारा खराब हो गया और दिल्ली एयरपोर्ट से उसको भेजना पड़ा बाय एयर। तभी सीक्वेल ग्लोबल लॉजिस्टिक के थ्रू हम लोग इसको भेजे थे। हाँ, और ये आज सैंपल उस टाइम गया था उनका ये रिसर्च पर्पस के लिए। तब से एक उनके साथ टाई अप बन गया एक प्रकार का। सेकंड में हम लोग कंसाइनमेंट भेजे थे, कॉटन भेजे थे, फिर उधर गया ग्रीन कॉफी बीन्स गया। अभी फिर इस टाइम जाएगा ग्रीन कॉफी बीन्स जाएगा और दालचीनी जाएगा। दालचीनी का तो हम लोगों का ये नहीं था, स्पाइस बोर्ड का सर्टिफिकेट नहीं था, इसको मैंने अप्लाई किया हूँ। तो ये शायद 6-7 दिन में मिल जाएगा और ये जाएगा, हमारा दालचीनी जाएगा। और खास करके जो आप राइस के बारे में बात कर रहे थे, राइस को लेके हम लोगों को एक इंक्वायरी आया था एक कस्टमर का। तो ये यूएस बेस्ड कस्टमर है, लेकिन उनका डिलीवरी होगा चाइना में। तो इनका बहुत सारा डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट था, और उनको खास करके ये बोल रहे थे, जो भी मैन्युफैक्चरर आप जहाँ से ले रहे हैं, जो भी मिल देगा आपको, उनके पास होना चाहिए चाइना के हिसाब से उनका जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ चाइनीज कॉर्पोरेशन का एक सर्टिफिकेट होता है। ये आप अगर दे पाएंगे तो तभी आप मतलब वैलिड करेंगे आपको, नहीं तो वो व्हाट काइंड ऑफ राइस संतोष भाई? हाँ जी, व्हाट काइंड ऑफ राइस? हमने रॉ ब्रोकन राइस का रिलेटेड का बात चल रहा था, व्हाइट राइस का। लेकिन आप कुछ भी हो मैन्युफैक्चरिंग, हाँ, जहां से भी भेजेंगे ना, ये क्राइटेरिया मैच होना चाहिए। वो मुझे एक एग्जांपल दिए, बोले कि इवन इफ आपका आईसी सर्टिफिकेट होने से भी आप भेज नहीं पाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है।
ये डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है आपको। एक मिनट, आपको ये जो डॉक्यूमेंट है, जो मैन्युफैक्चरर है उनका एक लिस्ट होता है उनका, कुछ शायद वो मुझे एक वेबसाइट अपडेट किए थे, मैं उसका स्क्रीनशॉट लिया था, मैडम को भी पूछा था लास्ट एक हमारा जो मीटिंग हुआ था ये वेबिनार में। तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट पूछे थे, बोले कि ये मैन्युफैक्चरर अगर वो सर्टिफाइड है तो ये वेबसाइट में दिखाई देगा और उसी बेसिस पे हम लोग कंसाइनमेंट आपका ले पाएंगे और आपको उनके साथ टाई अप करना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं है कोई भी चावल भेज देगा उनसे ले लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। शायद वो कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। और दूसरा ये बोल रहे थे अगर आपका खाली चाइनीज के लिए जैसे जीएससीसी हो गया, सेकंड में था एनपीपीओ, ये एक डॉक्यूमेंट होता है, नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एक होता है। वो डॉक्यूमेंट अगर आप सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं तो फिर आप चावल रिलेटेड का जो भी कंसाइनमेंट आप भेज पाएंगे। Okay. ये सारा था अभी तक का उनका वही इंक्वायरी था। फिर मैंने देखा कि एक सिंगल प्रोडक्ट में, जैसे मैडम बताते हैं ना, आपका कोई एक सिंगल प्रोडक्ट में फोकस रहिए और उसके ऊपर काम कीजिए। अननेसेसरी जिसमें आप इतना एक्सपर्ट ही नहीं है तो उसमें टाइम वेस्ट करना सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आपका आईसी सर्टिफिकेट है, आपको कोई पूछ लेगा कि आपका तो आईसी लिए हैं, आप वो कर रहे हैं एक्सपोर्ट का बिजनेस, मेरे लिए ये भेज दो, उसके लिए ये भेज दो। हाँ, आप इसमें ना जाके टाइम वेस्ट ना करके बेटर वही आप जो प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं वही प्रोडक्ट रिलेटेड अगर इंक्वायरी मिलता है या आप फोकस्ड रहते हैं तो उसी के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगा। That is true actually. संतोष जी, हाँ जी, जैसा आप बता रहे हैं कि राइस के बारे में कुछ सर्टिफिकेट चाहिए मैन्युफैक्चरर से, तो वो आपने इंक्वायर किया क्या मैन्युफैक्चरर से कि वो सर्टिफिकेट मिलता क्या उनके पास? ये हमने एक्चुअली यहाँ पे चेक किया। उड़ीसा में ज्यादातर क्या होता है ना, उनका जितना भी डिमांड होता है ये लोकल मार्केट को सफिशिएंट हो जाता है उनका और बचता नहीं है। और आज का डेट में इतना तक तो दिखाया गया है कि बहुत मतलब कम मात्रा में लोग क्या करते हैं ना, एक्सपोर्ट रिलेटेड का इंटरेस्ट रखते हैं और कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं उनका प्रोडक्ट के ऊपर, चाहे क्वालिटी हो या पैकेजिंग का हो। और ये देखते हमने ये इतना तक का इन्वेस्ट किया, 2-4 रुपया मिल गया यहीं की इंडिया के अंदर, उसको सेल कर दीजिए। उसको नेक्स्ट प्रोसेस में कौन क्या करेगा उनका वो इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं और उतना दिन तक उनका पेशेंस भी नहीं रहता है। हमको क्या है, जितना भी पैसा मिल गया उतना दे दो और 2-4 रुपया जो भी मिल जाएगा उतना में ये कर लो। लेकिन तो एक्सपोर्ट में ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलता है क्या? ना, इधर है नहीं। खास करके भुवनेश्वर में अगर भुवनेश्वर का बात करेंगे तो यहाँ पे एक है फाल्कन मेराइन जो कि ज्यादा हमारा जो झींगा होता है ना, प्रॉन, वो ऑल ओवर वर्ल्ड सप्लाई करता है और अच्छा बिजनेस है, बहुत लिमिटेड है। और बाकी का अगर एक्सपोर्टर का बात किया जाएगा तो अगर राइस को रिलेटेड अगर बताएंगे तो आंध्र प्रदेश साइड में वो मुझे बोल रहे थे कुछ मैन्युफैक्चरर है जिसके पास जीएसीसी और एनपीपीओ ये सर्टिफिकेट है और ये लोगों के साथ अगर टाई अप किया जा सकता है तो कुछ काम बनेगा। संतोष भाई, मोस्टली जीएसीसी किसके लिए बोला था आपने? जीएसीसी मैडम मैंने लास्ट मीटिंग में जैसे आपको पूछ रहा था ना, चाइना के लिए जो भी था, चाइना का एक कंसाइनमेंट मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। मैं वो एग्जैक्टली उसका फुल फॉर्म भी बताता हूँ। मैं शायद आपने मैम, is Food and Drug Authority is not enough for this? नहीं, उसमें Individual नहीं। countries. समझा नहीं, आपने क्या पूछा सवाल? सुषमा मैम, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी इंडिविजुअल कंट्रीज का होता है फॉर एक्सपोर्ट, so is it not enough? Even the China don't have FDA like America. चाइना में फसाई की अगर बात कर रहे हो तो सेंट्रल फसाई इज डिफरेंट। ओके, सो अगर हम प्रोसेस फूड में जा रहे हैं या फिर ऐसे प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो सेंट्रल फसाई इज मैंडेटरी, तो आपको सेंट्रल फसाई लगने वाला ही है। लेकिन जो संतोष जी अभी बोल रहे हैं ना, तो अपार्ट फ्रॉम मतलब फसाई के अलावा भी अगर हम स्पेसिफिकली चाइना टारगेट करते हो तो दैट सर्टिफिकेट इज नीडेड। सो विद फसाई दैट इज द एडिशनल सर्टिफिकेट। मैडम वो इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ। ओके, यस संतोष भाई। ये है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स रिपब्लिक चाइना।
मैंने आपको मेरा जो डायरेक्ट नंबर से आपको 1-to-1 मैंने व्हाट्सअप किया था उसका। और दूसरा इनका ये है, उनका एक जो वेबसाइट है ना, उसमें दिखाई देगा कि आप रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तभी वो आपसे लेंगे मटेरियल। ऐसा नहीं है कोई किसी का आईईसी सर्टिफिकेट हो गया और आपसे ले लेंगे। ये शेयर करना तो शायद मैं मुझे मालूम नहीं है कैसे करते हैं वो, मैं नहीं तो वो इसका एक्चुअली आपका मैसेज मैंने साइट अभी में देखा। शेयर करवा देता। I will check that. या क्योंकि आपका शायद 2 नंबर है मेरे पास। हाँ, मैंने मेरा 98 नंबर से मैंने दिया था अप्रैल 7 तारीख को आपको। इसीलिए वो मिस हो गया मेरे। संतोष भाई, can you share in the group if possible? Which one? मैं मैडम को बोलता हूँ शेयर कर देंगे। मैं फोन से कैसे करते हैं शेयर, ये व्हाट्सएप से मुझे मालूम नहीं एक्चुअली। Okay भाई, not a problem. कोई बात नहीं है, उनके जो रिलेटेड है ना, आप उनको डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है। Okay. तो इन शॉर्ट बेसिकली ओके, 2-3 बातें थी अभी नए लोगों के लिए भी और पुराने लोगों के लिए, कि मुझे एक पूछना था कि टाइम वी नीड टू डिसाइड फॉर द मीटिंग। अभी हम तो हमेशा रेगुलरली 7 बजे लेते आए हैं, तो व्हाट इज योर ऑल ऑफ यू ओपिनियन कि 7 बजे इज ओके और 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए, क्या चाहिए आपको, ताकि मतलब सारे लोग ज्वाइन हो सके। मैडम मुझे 7 के पहले चाहिए, 5 बजे का चाहिए पॉसिबल है तो। 7 के पहले तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सारे लोग बहुत सारे जॉब कर रहे हैं, बिजनेसेस है या जो भी कुछ होगा। व्हाई इट इज इन द इवनिंग और नाइट की सारे लोगों को फिजिबिलिटी हो सके अटेंड करने की। तो मिनिमम स्टार्टिंग कोई बात नहीं, देख लेंगे हम कैसे क्या है। अगर नहीं भी होता है तो भी रिकॉर्डिंग तो ऑलरेडी अवेलेबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। दोज हु आर न्यू, सो दोज हु आर न्यू, मैं सबके लिए कहूंगी गो थ्रू द ऑनलाइन कोर्सेज। मैं सब मतलब whatever your product doesn't matter about that, whether it is engineering, whether it is agri, whether it is textile, handicraft, जो भी कुछ है, मतलब वो मैटर नहीं करता है। बस आपको प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर मैं सबके लिए कहूंगी, इफ यू आर नॉट द राइट पर्सन टू फॉलो दैट प्रोसेस, समवन फ्रॉम योर टीम, अगर आप मतलब बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके टीम में से किसी को भी बिठाओ, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कहो, और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर टीम से बात कर सकते हो, मुझे भी बात कर सकते हो, बट फॉलो द प्रोसीजर। और दूसरी बात है कि बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं होगा, कोई कितना भी बताए तो भी एडवांस में आप काम नहीं कर सकते, क्योंकि टू क्रैक द मार्केट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फर्स्ट। और बेसिक के लिए प्रोसीजर वही है कि आपको लर्निंग करना पड़ेगा, और अगर आप लर्निंग नहीं कर सकते तो समवन फ्रॉम योर टीम और एनीवन यू नीड टू लर्न, मतलब उनको लर्निंग करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ लाइक अभी नीरज जी आप बहुत दिनों के बाद कनेक्ट हुए हो, आपको जो भी प्रोडक्ट है इंजीनियरिंग का, तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूंगी सबके लिए भी, राइट, कि अगर समझ के चलो कि चलो मतलब मार्क आपका राइस प्रोडक्ट है, किसी का बनाना होगा, किसी का एग्री होगा, किसी का प्रोसेस फूड होगा, कि कोई वुडन टॉयज में काम करता है, हैंडीक्राफ्ट में है, कोई टेक्सटाइल में है, कोई इंजीनियरिंग में है। तो अगर आप इंजीनियरिंग भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो भी आपको बेसिक प्रोसीजर पे काम करने की जरूरत है। सो प्रोडक्ट में भी यू आर हैविंग द मास्टरी, राइट, आपके पास प्रोडक्ट की मास्टरी है। सो अभी नेक्स्ट पार्ट क्या आता है कि कौन से मार्केट में वो एस्टेब्लिश होना चाहिए प्रोडक्ट, वो मतलब टारगेट मार्केट हमें चूज करना पड़ेगा। एंड देन टारगेट मार्केट के बाद वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू जनरेट द लीड्स। ओके, सो नेक्स्ट काम क्या है हमारा, मार्केट आइडेंटिफिकेशन एंड देन द जनरेशन ऑफ द लीड। सो ये 2 बेसिक पार्ट है कि आपको करने पड़ेंगे। अभी जनरेशन ऑफ लीड होने के बाद जब भी हम उसको फॉलोअप में लेके जाते हैं उस पार्टी को या फिर कस्टमर को, कि ओके दिस इज माय कंपनी, दिस इज माय प्रोडक्ट एंड वो सारी बातें हैं, तो वो सारी चीजों के लिए आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दे विल आस्क यू व्हाट इज द प्राइस ऑफ एफओबी, व्हाट इज द प्राइस ऑफ सीआईएम, व्हाट इज द प्राइस ऑफ एक्सपोएम। तो वो आपको पहले क्लियर होना चाहिए खुद को कि एफओबी बोलते किसको है, और सिर्फ एफओबी बोलते किसको है ये पता हो की जरूरत नहीं है। तो एफओबी हाउ यू विल कैलकुलेट द एफओबी प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट, ये आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एफओबी निकालने के लिए आपको लॉजिस्टिक का बेस पता होना चाहिए, एफओबी का कॉस्टिंग का बेस पता होना चाहिए, इनको टर्म्स पता होनी चाहिए। मतलब ये हुआ फिर से बेसिक पे गया, और इसीलिए आपको ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और डोंट वरी अबाउट दैट कि ये सिर्फ एक बार करनी है, बार बार वही रिपीट नहीं करना है हमें, सिर्फ हमें एक बार वो सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है। उसके बाद आपको कुछ भी क्लैरिटी लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली कस्टमर फंडिंग करके कस्टमर को कन्वर्ट कैसे करना है उसके ऊपर जाओगे। ओके, रही बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, लाइक फॉर एग्जांपल अभी संतोष जी का एग्जांपल देखो,
अभी उन्होंने 6 कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट किए, राइट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट किए, कैशू का किया, ड्राई फ्रूट्स का किया, अभी राइस का कर रहे हैं या फिर स्पाइसेस का कर रहे हैं, सो दे आर डीलिंग इन द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। बट लेकिन उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जब भी कैशू किया तब उनको बेसिक पता था, तो कैशू प्लेस होगा मार्केट में। अभी जब भी नेक्स्ट प्रोडक्ट ऐड हुआ बकेट में कि राइस अभी एक्सपोर्ट करना है, बट द मार्केट इज ऑल्सो डिफरेंट, तो राइस उनको अगर चाइना में एस्टैब्लिश करना है तो राइस एंड चाइना का कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, लेकिन व्हाई ही कैन कम्युनिकेट विद देम बिकॉज दे अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट फर्स्ट। सो अगर कस्टमर डिमांड करता है एक्स्ट्रा की, तो एटलीस्ट उनको इतना तो पता चले कि ओके वी नो द बेसिक्स बट दिस सर्टिफिकेट इज समथिंग एक्स्ट्रा। सो एक्स्ट्रा के लिए किसी को कोई लगता नहीं कि आप नए हो या पुराने हो, क्योंकि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ही होता है। लेकिन अगर आप शुरुआत में उनको दिखाते कि यू आर टोटली न्यू एंड जीरो इन द बिजनेस, तो फिर बिजनेस मतलब पता होगा कि आपको भी कैसे हो सकता है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकोटर्म, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्मिनोलॉजी ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इज वेरी मच important. Like for example, if I can crack any market for any product, why? Because I understand the business first. तो इसीलिए कौन सा भी प्रोडक्ट लेके मार्केट में क्या कर सकते हैं, मुझे पता है कि बिजनेस को लाइक कस्टमर को क्या बात करनी है, कस्टमर को कैसे बोलना है, ये मुझे पता है। अगर कस्टमर पूछता है कैन यू गिव अस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ओके आई कैन, बट कैन यू गिव प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, आई कैन अंडरस्टैंड दैट आल्सो, बट माइट बी यू विल हैविंग द क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, व्हाट इज द प्रेफरेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द बेसिक, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, मैं एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ, दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस। सो ऐसे मत समझो कि मुझे जरूरत नहीं है किसी कुछ जानने की, या फिर मतलब बेसिक की इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं सीधा प्रैक्टिकल पे कैसे जाता हूँ। If you are the person to communicate with your customer, you need to understand the basic first. This is the basic criteria of the international business. मैं कहूंगी बाकी आपको सारी चीजें कुछ भी नहीं करनी है, ना कि आपको डॉक्यूमेंटेशन हैंडल करनी है, ना कि आपको बाकी सारी जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो हैंडल करना है, लेकिन आपको कस्टमर को कम्युनिकेट करने के लिए एक फर्स्ट क्राइटेरिया इज यू शुड अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट वेरी वेल, दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज यू शुड अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल, and the third is you should understand the basic terminology of the business. बस आपको बिजनेसमैन बनने के लिए 3 चीजें की जरूरत है, बाकी जो भी कुछ होगा ना एडमिनिस्ट्रेटिव का, डॉक्यूमेंटेशन का, ये वो सारी चीजें, सो दैट विल बी टेकन केयर, उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, गॉट इट, राइट। और उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो भी पूछ लेना। दूसरी बात सबके लिए, लाइक जो भी मेरे पेड स्टूडेंट है उनके लिए भी, पुराने हो नए हो, वॉट एवर यू आर द फैमिली मेंबर, सो उनके लिए अप्रैल, एंड ऑफ द अप्रैल में 3 दिन का मैंने एक पेड सेशन रखा है, सबको मतलब पब्लिक के लिए भी है और पेड स्टूडेंट के लिए वो फ्री रहेगा, ओके, पब्लिक के लिए वो दैट इज पेड, लेकिन आप सबके लिए फ्री है। सो ये अभी हो रहा है ना कि आप ब्रेक से सुन रहे हो सारी चीजें, लाइक एक हफ्ते में एक सेशन देखा, सेकंड हफ्ते में दूसरा सेशन देखा, राइट, वी आर डिस्कसिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो, इट इज नॉट अबाउट द सेशन ओनली। सो आपके लिए सीधा मतलब एक साथ चलेगी सारी बातें, सो 3 दिन, ओके, वो सेशन जो होगा वो स्टार्ट टू एंड सारा कवर किया जाएगा उसमें, सो यू प्लीज अटेंड दैट आल्सो, ताकि आपको एक ही समय पे 3 दिन में सारी क्लैरिटी क्लियर हो जाए, और फिर बाद में हमारी एडवांस सेशन तो होने वाली है, ठीक है। ये कहाँ पे है मैम, ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ऑनलाइन ही है, अभी के लिए तो पूरे इंडिया के लिए कर रहे हैं तो इट इज ऑनलाइन, लेकिन ऑफलाइन हम स्टेट वाइज करने वाले हैं, तो ऑफलाइन के लिए भी आपके लिए तो सारे फ्री है, तो यू कैन ज्वाइन टू दैट आल्सो, ठीक है। तो अभी के लिए तो ऑनलाइन है, तो फिर आपको 1 2 3 दिन में आपको पूरी स्टार्ट टू एंड क्लैरिटी मिल जाएगी उसमें, ठीक है। बाकी रेस्ट आप कोर्सेज के थ्रू भी कनेक्ट होना, और जो भी कुछ है डिस्कशन में रहो, और जो लर्निंग कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो अगर नहीं होता तो एक कंसाइनमेंट करके एक्सपोर्टर बन के कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, हमें कंटिन्यू रहना है बिजनेस में, तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है उसके ऊपर ध्यान दो, ठीक है। Yes, any doubt? चलो, आज एक्चुअली कॉस्टिंग का सेशन है, लेकिन कंसिडरिंग द ऑल ऑफ यू हियर न्यू मेंबर्स एंड ऑल, अगर डायरेक्टली कॉस्टिंग पे जाएंगे तो इनके सर के ऊपर पे जाने वाला है, बराबर। मैडम बेटर गो फॉर कॉस्टिंग ओनली। हाँ, लेकिन कॉस्टिंग के लिए आपको इनकोडम पता होनी चाहिए पहले, फिर आपको लॉजिस्टिक पता होना चाहिए, ओके, तब जाके मैं कॉस्टिंग क्या बता रही हूँ वो समझ में आएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, सो बस इतना ही अंडरस्टैंड करो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इज लिंक एक्टिविटी, एक लिंक अगर नहीं समझती तो दूसरी वाली लिंक नहीं समझेगी,
फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि चलो हम एफओबी अंडरस्टैंड करते हैं, एफओबी का कॉस्टिंग कैसे निकाले, तो एफओबी के लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा व्हाट इज एफओबी, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। ओके, व्यू विल गिव यू व्हाट इज एफसीएल, व्हाट इज एलसीएल, कंटेनर कौन से होते हैं, 40 फीट 20 फीट, उसके डायमेंशन में कितना माल जाता है, मतलब ये सारी बातें बैकएंड पे है। और वो अगर समझेगी तो हम डायरेक्टली कॉस्टिंग पे जा सकते हैं, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। ओके, बट ठीक है, आज हम बेसिक हम बोल नहीं सकते, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर वी विल टेक। लाइक अगर हमें मार्केट में एस्टैब्लिश होना है एज ए एक्सपोर्टर, सो व्हाट नीड टू बी डन। ओके, फर्स्ट दैट इज द मेन थिंग, क्योंकि पिक्चर में बायर पहला आना चाहिए, तब जाके हम बाकी सारी बातें सीखें, और बाकी सारी बातें सीखने का मतलब कुछ हो सकता है, राइट? सो हाउ यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ इन द मार्केट, सो वी विल टेक टुडे टॉपिक, वो टॉपिक हम लेंगे आज, ठीक है? या सो उसके लिए पहली बात क्या है कि एज ए एक्सपोर्टर बनके, जैसे होता है ना कि हमेशा बायर कैसे मिलता है, उसके लिए एक तो स्टेप बाय स्टेप जाओ। फर्स्ट थिंग है कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट होना जरूरी है, आइदर सेक्टर सिलेक्ट होना जरूरी है। लाइक महेश जी, आपके क्वेश्चन के आंसर के लिए आज जो रिकॉर्डिंग के सेशंस आपको भेजे गए हैं, पुराने वाले जो रिकॉर्डिंग है, उसमें मैंने जो पहला सेशन लिया था हाउ टू सिलेक्ट प्रोडक्ट का, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट एंड आई हैव डिटेल एक्सप्लेन इन दैट 2 घंटे में कि प्रोडक्ट सिलेक्शन। मैंने वो देखा है, उसमें एक डाउट है, पूछ सकता हूँ क्या? यस यस। जैसा आपने एग्जांपल दिया था कि आपने एग्रो के अंदर जाके फिर उसका सब डिवीजन वो चूज किया है, तो आपने उसमें विषय बताया था कि भाई ये एक्सपोर्ट करने से इसमें ये इश्यू था, इसलिए मैंने वो चूज नहीं किया, तो वो कैसे मालूम चले पहले हमको? नहीं, इसके लिए अभी क्या है ना, वही तो मैंने कहा क्या कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने एग्री इज माय इंटरेस्ट, तो अगर मैंने ब्रॉडर लाइन पे सेक्टर पहले चूज किया प्रोडक्ट के सिलेक्शन में, फिर सेक्टर में फिर से मैंने डीपर की कि उसमें क्या होता है, एग्री में लाइक फ्रेश फ्रूट्स आते हैं, वेजिटेबल्स आते हैं, फिर वेजिटेबल्स अगर एक्सपोर्ट करने हैं तो उसके लिए क्या होता है, तो हमें पहले सेक्टर को थोड़ा समझना पड़ेगा। और ये सेक्टर मतलब इसीलिए पहला ही सवाल क्या दिया था मैंने, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, इट इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो नॉट नो, या फिर लोग क्या कहते हैं, अच्छा है बुरा है, ये सारे क्वेश्चंस हमें लगाने नहीं है इसको। पहला हमने क्या किया कि हमारा इंटरेस्ट किसमें है, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। या उसमें शायद आपने बताया था कि आपको नींबू और ड्रमस्टिक में वो दोनों आपका इंटरेस्ट था, आई थिंक सो, नींबू बताया था आपने शायद, लेकिन फिर नींबू में एक्सपोर्ट में ये इश्यू है करके आप ड्रमस्टिक गए बोले, तो वो इश्यू एक्सपोर्ट में इश्यू मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ा मतलब अभी जब भी अगर मेरा सेक्टर आइडेंटिफाई है, मुझे इसी सेक्टर में काम करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत तो जानकारी उसकी रखनी पड़ेगी ना अभी। तो आई हैव लाइक फिगर्ड आउट ऑल द थिंग्स कि अगर मुझे लेमन करना है, ड्रमस्टिक करना है, तो मैं पहले क्या चूज कर सकती हूँ। सो आई कैन एक्सपोर्ट लेमन आल्सो, आई कैन एक्सपोर्ट ड्रमस्टिक आल्सो, बट व्हाई आई हैव चूजन ड्रमस्टिक ओवर दैट, बिकॉज लेमन के लिए कंटेनर एक्सपोर्ट करना पड़ रहा था और ड्रमस्टिक एयर शिपमेंट भी जा रही थी, तो ये चीज पहले मालूम पड़नी ना। हाँ, तो इसीलिए अगर इंटरेस्टेड सेक्टर है तो उसके लिए तो डीपर जाके फिर से थोड़ा सा मतलब स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी हमें। प्रोडक्ट तभी आएगा ना, कौन सा भी प्रोडक्ट लो, कौन से भी सेक्टर का लो, हमें मतलब उसका कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा ही पहले। और अगर इसीलिए तो मैं आपको क्यों हेल्प कर रही हूँ इसमें, अगर आपको कोई भी डाउट हो कि लाइक चलो आपके लिए 4 प्रोडक्ट्स आपने फाइंड आउट की, अभी 4 प्रोडक्ट्स में क्या हो सकता है, सो यू कैन डिस्कस विद द ग्रुप आल्सो, यू कैन डिस्कस विद मी आल्सो। हाँ वो ठीक है, अगर 4 प्रोडक्ट मैं चूज करके नहीं वो हो सकते हैं, आई कैन गाइड यू अकॉर्डिंगली कि इस 4 प्रोडक्ट्स में ओके, इस 4 प्रोडक्ट्स में मैं और भी दे सकती हूँ कि इसमें ये ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, ऐसा चलता है, तो हम हमारे प्लस माइनस को अटैच करके कौन सा प्रोडक्ट हमारे लिए सुटेबल हो सकता है, वी कैन गो विद दैट। राइट, परफेक्ट, ओके, दैट कैन बी डन। ओके, सो प्रोडक्ट एक तो वो चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर नहीं तो है ना कि लाइक कौन सा भी प्रोडक्ट लेके भी आप चल सकते हो, लेकिन उसको मैं इतना ही कहूंगी कि उसके लिए प्लस माइनस क्वेश्चन आंसर्स मत लगा के चलो, क्योंकि जितना आप अंदर जाओगे ना उतना फ्रस्ट्रेशन ज्यादा आएगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस दिखने वाले, हर मार्केट में भी कुछ ना कुछ तो प्लस माइनस आपको दिखेंगे, और ऐसा कभी नहीं हो सकता जैसे है ना कि हर लोग अपने पर्सपेक्टिव से बातें करते हैं कि ये सेक्टर अच्छा है क्योंकि मैंने उसमें एक्सपीरियंस लिया, आप बोलोगे ये एक सेक्टर अच्छा है क्योंकि आपने इसमें एक्सपीरियंस लिया है, तो कभी भी कुछ भी गलत या सही कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हमारे लिए गलत सही क्या है वो हम खुद डिसाइड करेंगे, तो उसके ऊपर काम करो, ठीक है। हमने मार्केट भी चूज किया, ऐसे भी पकड़ के चलते। आई एम अज्यूमिंग द थिंग्स लाइक यू हैव द प्रोडक्ट, यू हैव द मार्केट आल्सो, देन नेक्स्ट स्टेप कि हमें उस मार्केट में उस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है, एस्टेब्लिश करना है, तो क्या करने की जरूरत है, दिस वी विल सी नाउ। ओके, उसके लिए फर्स्ट जैसे होता है ना कि आपकी वेबसाइट है क्या, दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया यू हैव।
if you are running a company, you are running a business, you should have a website. For example, अगर मैंने कहा कि हम सब लोग जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, तो पहले लोग कंपनी क्या मांगती है हमें? If you are applying for job, then resume. Yes, resume. Send me resume. Why? Because I want to know about you first, and then I will communicate with you later. Right? This is the first criteria. कि वो आपके बारे में पहले समझना चाहते हैं कि आप क्या करते हो, क्या किया है आपने, आपकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सारा वो रिज्यूम से जानना चाहते हैं. So if you are running a company, what is your resume of company? तो अगर आप किसी को भी अप्रोच करोगे तो उसके लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा पहले. बिफोर यू कम इन टू पिक्चर, आपकी वेबसाइट पहले पिक्चर में आएगी और वो वेबसाइट से जानेंगे कि आप क्या हो और क्या कर रहे हो, आप कब एस्टैब्लिश हुए, आपका काम क्या चल रहा है, आपने शायद कुछ अचीवमेंट की होगी तो वो वेबसाइट पे डाले जाते हैं, आपकी टीम हो तो वो डाली जाती है. इट इज नॉट अबाउट, अभी ये क्वेश्चन मत पूछो कि मैं स्टार्टअप हूँ तो क्या डालूं. बस मैं कह रही हूँ कि इट इज लाइक अ रिज्यूम ऑफ योर कंपनी. ओके, कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वहां पे डाली जाएगी. अकॉर्डिंगली पीपल विल कम टू नो अबाउट यू. लाइक आप वो परसेप्शन में जाएंगे कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, छोटी है, आप क्या हो. मैडम रफली this कितना is the कॉस्टिंग first होता है वेबसाइट का? मैडम वेबसाइट बनाने के लिए कितना खर्चा आता है रफली? वेबसाइट बेसिक है. अगर आप वर्डप्रेस जानते हो, टेक्निकल से भी हो, तो यू कैन मेक वेबसाइट इन द फ्री आल्सो. वर्डप्रेस से फ्री में बनती है. और अगर आप नहीं जानते हो तो मार्केट में 2000 से लेके भी लोग वेबसाइट बनाते हैं, 2 to 5000 आल्सो. ओके, थैंक यू. हमने 15,000 में मैडम 15,000 में बनाए थे हमारा जो वेबसाइट है ग्लोरीफाई इंडिया हाँ. एक्सपोर्ट्स. इसमें Right. GoDaddy में आपका एक नाम ब्लॉक करना पड़ेगा और हर साल आपको रिन्यू करना पड़ेगा. और कोई भी आप जो डेवलपर है, वेबसाइट डेवलपर, उनको देके आप कर सकते हैं जो प्रोडक्ट आप ऐड करेंगे. दैट इज अबाउट द डोमेन. लेकिन जैसे आपने 15,000 में बनाया, लेकिन बेसिक वेबसाइट में कहूंगी सबके लिए रिक्वेस्ट है कि आप बेसिक वेबसाइट में जाओ. स्टार्टिंग डायनेमिक करने की अभी जरूरत नहीं है, उतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है. जैसे होता है ना, बेसिक रिज्यूम है मेरा, फिर मैं जाके एडवांस रिज्यूम बनाऊंगा. एटलीस्ट पहले बेसिक काम करो कि एटलीस्ट मेरी कुछ तो आइडेंटिटी है. और इसकी जरूरत क्यों है मार्केट में एस्टैब्लिश होने की? अगर हम किसी को भी अप्रोच करते हैं कि दिस इज माय प्रोडक्ट एंड दिस इज माय प्रोफाइल, तो वो बंदा पहले आपका नाम लेके गूगल पे चेक करेगा कि आइदर यू आर एग्जिस्टेड और नॉट. जैसे हम करते हैं ना, किसी के भी बारे में गूगल में चेक करते हैं पहले. तो अगर वो बंदा एग्जिस्टेड नहीं है तो शायद इसका मतलब वो फ्रॉड है. यस सर, वर्चुअल ऑफिस हो गया हम लोगों का. राइट, वर्चुअली है. अभी तो वर्चुअली जरूरी है क्योंकि फिजिकल तो है नहीं, वो कोई देखने के लिए आएगा नहीं, लेकिन वर्चुअली वो पहले चेक किया जाएगा. सो इसीलिए दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट. एंड इट इज नॉट कि मैं कह रही हूँ कि एक्सपोर्ट के लिए जरूरी है, मैं कहूँगी बिजनेस के लिए जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल फॉर्च्यून आई एम रनिंग इन इंडिया, लेकिन अगर मेरी वेबसाइट नहीं होगी तो हाउ यू कैन ट्रस्ट ऑन मी? दिस इज द सेम. इट इज नॉट अबाउट एक्सपोर्ट ओनली कि एक्सपोर्ट करना है तो इतना खर्चा क्यों करें. मैं कहूंगी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है ये कि आपको आपकी वेबसाइट होनी चाहिए. फिर वेबसाइट में जो भी है मतलब वो डालो. स्टार्टअप अगर हो तो स्टार्टअप की एक्सपीरियंस डालो, लेकिन आपकी कुछ तो स्पेशलिटी होगी. अगर स्टार्टअप भी होगी तो कुछ तो स्पेशलिटी आप डाल सकते हो उसमें. लाइक फॉर एग्जांपल अगर ओके मैक आपने एक्सपोर्ट किया है ऑलरेडी, तो यू कैन एक्सपीरियंस देयर, मतलब आप वो मेंशन कर सकते हो. किसी ने नहीं किया इसका मतलब मैंडेटरी नहीं, कोई ना कोई तो पहले 0 होने वाला है, फिर जाके वो बढ़ेगा. राइट, इसका मतलब 0 कभी था ही नहीं, डायरेक्टली प्लस पे 5 पे आया, ऐसे कभी हो नहीं सकता ना. तो एक हिंट उसके लिए क्या है, वेबसाइट में क्या डालोगे, आपके प्रोफाइल रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट रिलेटेड. ऐसे मार्केट में बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे, कंपनीज होंगे, उनकी वेबसाइट चेक करो, उनके पूरे टैब में चेक करो, होम में, अबाउट अस में, प्रोडक्ट में उन्होंने कैसे डाला है, उसको कॉम्बिनेशन करके अपने वेबसाइट में डालो. ये कोई कॉपीराइट डेटा तो नहीं है कि वो नहीं डाल सकते हम, सारे लोग वैसे ही करते हैं. सो दिस इज अबाउट द वन. सो फर्स्ट वेबसाइट आपकी होनी चाहिए. सेकंड, अगर कस्टमर मतलब आपको जेन्युइन मानना चाहता है तो उसके लिए एक तो हुई वेबसाइट. द सेकंड इज सोशल मीडिया प्रेजेंस, दैट इज नीडेड. ओके, सोशल मीडिया प्रेजेंस दैट इज नीडेड, क्योंकि आज की पूरी मतलब है ना कि मार्केट ही सोशल मीडिया पे आई. कहां पर भी जाओ पूरी मार्केट सोशल मीडिया पे आई. राइट, तो अगर हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसलिए बोल रही हूँ. और सोशल मीडिया में क्या क्या आया, द फर्स्ट मैं कहूंगी सोशल मीडिया आपको होना चाहिए लिंक्डइन पे. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. सो आप में से कितने लोग लिंक्डइन पे है अभी? ओके, ग्रेट. यस, नीरज जी आप है? मैम है तो सही, लेकिन इतने एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पे. This is my second question. है तो Those सही, who are लेकिन on the ज्यादा LinkedIn,
How active you are? Not active at all. This is the important part. मतलब अभी देखो यहाँ पे कोई सही गलत की बात नहीं चल रही है, बस मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ आपको कि बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है और क्या रिक्वायर्ड होता है। हम हमेशा उसको नजरअंदाज करके चले जाते हैं और रिजल्ट जब भी नहीं मिलता तो हम सारे लोगों को ब्लेम करते हैं, मार्केट को, प्रोडक्ट को, इंसान को, इस कंट्री को, ऐसे मतलब हमेशा चलता है कि ये होता ही नहीं। लेकिन होता नहीं के लिए मैं हमेशा कहूंगी डोंट बाईपास द प्रोसीजर्स, नेवर बाईपास द प्रोसीजर्स। बाईपास से कोई काम हो भी नहीं सकता आपका। अगर धंधे की रिक्वायरमेंट है तो करना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगी इंडिया में डोमेस्टिक जब भी हम काम करते हैं, धंधा करते हैं, तो हमें कोई बिजनेस नहीं सिखाता, हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रन करते हैं हमेशा। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये सारी बातें आती ही नहीं है। जब भी हम बिजनेस की बातें करेंगे ना कि यस वी वांट टू बी अ कारपोरेट, तब जाके ये सारी चीजें आप सिस्टमेटिकली फॉलो करोगे, क्योंकि दिस इज द बेस ऑफ द बिजनेस। और वो एक बार करने की जरूरत है, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल शो यू विद द रिजल्ट कि काम कैसे चलता है उसका। ओके, लिंक्डइन पे भी आपको होना चाहिए। दूसरी बात, आपकी प्रोफाइल भी उतनी ही, मतलब जो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं वो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन भी उतना जरूरी है। सिर्फ आप जाओगे ओपन करोगे और नाम डालोगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा, कोई एक्टिवनेस नहीं होगा, कोई एल्गोरिदम वर्क नहीं होगा उसके लिए। दिख रही स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही क्या? हाँ जी दिख रही है मैम। यस दिख रही है। हाँ, तो अभी ये मेरी प्रोफाइल है, ठीक है। क्या क्या आपको फॉलो करना है उसमें, दिस इज द कवर पेज। सो जो भी आपके नाम पे जो प्रोफाइल होगी उसका कवर पेज भी होना चाहिए। तो वहां पे कुछ भी ब्लैंक आ रहा है या फिर ऐसी बाय डिफॉल्ट इमेज आ रही है, सो दैट इज नॉट अ गुड साइन। ओके, सो पॉइंट टू बी नोटेड, लिंक्डइन अगर प्रोफाइल करते हो तो ये कवर पेज आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड, आपका फोटो एंड बी ए प्रोफेशनल फोटो। वहां पे भी कोई भी फोटो मत चिपकाओ, या फिर फोटो ही नहीं है ऐसे मत करो, क्योंकि दिस इज द आइडेंटिटी ऑफ योर बिजनेस। ओके, तो ये होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका नाम, और इसमें जैसे मैंने लिखा है, अभी ये मेरी आइडेंटिटी लिखी है, तो आप जो भी हो, फॉर एग्जांपल यू आर डायरेक्टर ऑफ योर कंपनी, सीईओ ऑफ योर कंपनी, सो लाइक दैट, कि आपका जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे होना चाहिए कि आप क्या हो और कौन हो। ओके, उसके बाद आता है या फीचर्ड में आप अपने प्रोडक्ट्स को डाल सकते हो, यहाँ पे आपके सर्विसेज को डाल सकते हो। तो ये जरूरी है, क्योंकि जब भी लोग विजिट करेंगे आपके प्रोफाइल को, वो ये चेक करेंगे पहले कि आप किसमें क्या काम करते हो। उसके बाद या भी ये मेरी एक्टिविटी, और इफ यू कैन सी मेरी डेली तो पोस्ट मेरी होती है, डेली भी होती है, इवन दिन में 2 बार भी मैं पोस्टिंग करती हूँ। ओके, नाउ यू कैन सी, अभी यहाँ पे आपको देखिएगा रिस्पॉन्सिव कितना होता है। ये अभी मैंने एग्जिम कोर्स की फ्लो चली 424 व्यूज, राइट, 3 आवर्स पहले ही पोस्ट मैंने की है। उसके बाद अभी ये सारे ऐसे कमेंट आते हैं, मतलब इंटरेक्शन ज्यादा बढ़ता है, एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ती है लोगों की। ये 10 आवर्स, ये अभी जस्ट मैंने वीडियो डाला था। ओके, ये वाली पोस्ट यू कैन सी 535, यू कैन सी 1955, मतलब 2000 लोगों ने ऑलमोस्ट ये पोस्ट देखी है, कमेंट से, लाइक से। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर एक्टिव ऑन द बिजनेस, ये लोगों को पता चल रहा है, राइट। और इसके बाद आता है ये पोस्टिंग के लिए बोल रही हूँ कि आपको जो भी प्रोडक्ट आपका बिजनेस है उसको पोस्ट करना है। उसके बाद आता है यहाँ पे अबाउट, तो आपके कंपनी के बारे में डालो, आपके बारे में डालो। एक्सपीरियंसेस में आपकी जो भी कुंडली हिस्ट्री है ना, जो रिज्यूम में हम डालते हैं, तो वैसे आपको यहाँ पे डालना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक समवन हैज एक्सपीरियंस ऑफ 15 years इन द स्टील इंडस्ट्री, तो यहाँ पे मेंशन करो ताकि वो क्रेडिबिलिटी है आपकी। दूसरी बात, जब भी हम ढूंढते हैं ना कि बायर जेन्युइन है क्या, तो बायर जेन्युइन है क्या, इसका एक क्राइटेरिया है कि गो एंड चेक द लिंक्डइन प्रोफाइल ऑफ दैट बायर, एंड सेम क्राइटेरिया विल बी फॉलोड फॉर द सप्लायर आल्सो। सो इफ यू आर अ सप्लायर, यू विल आल्सो चेक इन द लिंक्डइन, आपको भी चेक किया जाएगा कि लिंक्डइन पे आप कितने एक्टिव हो और आप क्या क्या कर रहे हो। ओके, क्योंकि ये यहाँ पे कोई तो फेक भी नहीं डाल सकता ना, रेशियो भी होगा तो बहुत रेयर होगा। लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ओनली, सो यहाँ पे वो सारा डिटेलिंग डाला जाता है, लोग डालते हैं उनका एजुकेशन कहाँ पे हुआ, स्कूलिंग कहाँ से हुआ, उन्होंने जॉब कितना किया, वो अभी बिजनेस रन कर रहे तो वो क्या कर रहे, इसका मतलब वो बंदा क्या कर रहा है, वो सारा हमें यहाँ पे पिक्चर क्लियर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो मेरे डाले हैं सारे,
ओके, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कौशल फूड स्टॉक, वो कंपनी मेरी कब से है। जीएफ मिशन इंडिया, वो कब से है, 4 years 8 months हुए। ओके, आई एम बिजनेस कोच फ्रॉम विच, विजिटिंग फैकल्टी टू बुक ऑथर हूं मैं, राइट। बाकी सारे, और यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हो ताकि लोग वहां पे जाके भी अंदर जाके चेक करते। अगर मैंने यहाँ पे मेरी वेबसाइट का लिंक दिया है, सो अगर मैं वो कौशल फूड प्रोडक्ट्स उनको अगर चेक करना है तो वो यहाँ पे जाके चेक करेंगे, अंदर जाएंगे। सो आई एम डायरेक्टली आस्किंग लाइक अट्रैक्टिंग द ट्रैफिक टू माय वेबसाइट आल्सो। सो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ती है। ओके, और ये मेरा जॉब एक्सपीरियंस कि मैंने क्या क्या हैंडल किया था और कहाँ कहाँ पे किया था और कितने साल एक्सपीरियंस है मेरा, राइट। समझ रहा है। सो दिस इज अबाउट द वन पार्ट। ओके, उसके बाद आता है स्किल्स, इंटरनेशनल ट्रेड, एंडोर्स बाय 3 colleagues, मतलब एंडोर्समेंट भी मिला। तो ये भी एंडोर्समेंट बहुत मैटर करते हैं लिंक्डइन पे। तो आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो उसके उनको कलीग को एंडोर्स करने करो। आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपके वेंडर, सप्लायर्स, जो भी कुछ होंगे, कस्टमर्स होंगे, उनको एंडोर्समेंट देने के लिए कहो। इसका मतलब आप अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ा रहे हो। People will trust on you by this endorsement, right? You can see here the recommendations भी दिए हैं, लोगों ने एंडोर्स भी किया है और लोगों ने रिकमेंड भी किया है। So इसका मतलब क्या हुआ, yes, people have used my services, right? और उनको अच्छी भी लगी है तो उन्होंने कमेंट भी किए है। So we are collecting the feedbacks also. So this is that. समझा? ओके, अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ से लीड कैसे जनरेट होते हैं फिर, so how we can generate the lead when you are active on the race. Okay, now he is the person, marketing head, Datsun Engineering Private Limited. Okay, you are doing a great job. I would like to discuss with you regarding exports to USA for sheet metal, fabricated parts, welded assemblies and heavy fabrications. Okay, I am sending my company profile for your reference and or your email address. So I have generated this lead, right? अभी मैंने उनको कांटेक्ट नहीं किया था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। Why? Because they are seeing my work on the LinkedIn कि मैं क्या कर रही हूँ। यस, और फिर हमने बात की थी, मतलब हमारे फोन पे बातें हुई। अभी वो नेक्स्ट मतलब चल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। This is also one of the thing. Okay, we are an export import based in Kuala Lumpur, Malaysia. We are in the process to prepare training manual for our company. So we have 3-4 divisions. We'd like to consolidate all our recipes. Will you able to guide us, help us to create professional full fruit manual? Once you are okay, as you like some training for our colleagues and person training also. And he is the Macworld Industries from Malaysia. समझा? So this is about the LinkedIn. अभी ये समझ के चलो, ये तो मैंने 2 एग्जांपल दिखाए, ऐसे बहुत सारी चीजें। बट ये क्यों हुआ? आई हैव नॉट कॉन्टेक्टेड टू दैट पर्सन, दे हैव कनेक्टेड टू मी। व्हाई? बिकॉज पीपल आर आल्सो ऑलवेज फॉलोइंग यू। आपको लगता है कि आपको कोई फॉलो नहीं करता, लेकिन पीपल आर ऑलवेज वॉचिंग ऑन। आप कर भी रहे हो तो भी वॉच होता है, और नहीं कर रहे हो तो भी वॉचिंग होता है। तो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब परसेप्शन साफ, रिजल्ट आपने डिक्लेयर कर दिया, आई एम नॉट एक्टिव इन दिस बिजनेस। तो आपका जो भी सर्कल है, जो भी कस्टमर बेस आपने मतलब बनाया है, उतने में आपका धंधा होगा। और हमेशा मैं कहती हूँ ना, डोंट बी लाइक दैट कि एक्सपोर्टर इंपोर्टर को ढूंढने जाएगा। बी लाइक दैट कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर के पास कैसे आएगा। उसके लिए जो करना पड़े उसके ऊपर मेहनत करो, बाकी हमें तो ढूंढना पड़ेगा, दैट इज डिफरेंट पार्ट। लेकिन हमेशा काम ऐसा करो, ग्रोथ कब होगी? जब इंपोर्टर आपको ढूंढते हुए आएगा कि ओके दिस इज द राइट कंपनी एंड आई वांट टू सप्लाई फ्रॉम यू ओनली, तब जाके बात होगी। और उसके लिए कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, आपको कुछ बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको उतना करना है कि जो आप कर रहे हो उसको अभी डिजिटल पे लाना पड़ेगा, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। उसके लिए आपको अंग्रेजी कितनी आती है, आपको लिखना कितना आता है, आप कितने ऑथर हो, नॉट नेसेसरी। उनके आपको, अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड धंधा कर रहे हो तो उनको आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, ना कि आप कितना अच्छा राइटिंग करते हो उसमें इंटरेस्ट नहीं है। और अगर आप सर्विस बेस्ड धंधा करो तो उनका आपके सर्विस में इंटरेस्ट है। तो जो बेच रहे हो उसका स्किल इंपॉर्टेंट है, ना कि बाकी सारे। और थोड़ा बहुत तो सबको लिखना आता है,
शुरुआत में शायद प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आप खुद नहीं कर सकते हो तो आउटसोर्स इट, बट दिस इज द मैंडेटरी। उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते और बाईपास भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ऑल आर रनिंग योर बिजनेस, एनी प्रोडक्ट और एनी मार्केट, but still if you are not visible on the online or digital, how people can know about you? How people can like check your status or visibility और credibility कैसे चेक कर सकते कोई? कोई नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो कि चलो अभी हमने दुबई छोड़ दिया, हमने मलेशिया को टारगेट किया, हमने जर्मनी को टारगेट किया, आपने प्रोफाइल भी भेजी, और अगर उन्होंने आपका नाम या कंपनी का नाम लेके अगर चेक करने की कोशिश की तो क्या दिखेगा उनको? और सेम थिंग, अगर मैं XYZ कंट्री की कोई तो हूँ और मैंने आपको प्रोफाइल मेरी भेजी और आपने मेरा नाम लेके गूगल पे चेक किया और आपको कुछ नहीं दिखा, तो आपका परसेप्शन क्या है? तो सेम, आप खुद को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हो कि आप फ्रॉड हो? वही कर रहे हो ना अभी। सो बस मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो प्रोडक्ट मार्केट भी बाद में आएगा। एटलीस्ट अपने प्रेजेंस पे आज से काम करना चालू करो, एंड इट शुड बी डेली, एवरी डे और कंटिन्यूअसली, वॉट एवर द शेड्यूल यू आर फिक्सिंग, बट वो कंटिन्यू कर फॉलो करो। लिंक्डइन पे मैं नहीं कहूंगी कि आपको डेली पोस्ट करो, अगर आपको जमता है तो जरूर करो। अगर नहीं आता ना, डेली आपको पॉसिबल नहीं ये करना, नो इश्यूज इन दैट, एटलीस्ट वीकली 2 बार तो करो, बट मेक अ शेड्यूल ऑफ दैट, 2 बार तो करो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्या करना है, लाइक संतोष कुमार जी, आपके लिए अगर आप स्पाइसेस में काम कर रहे हो, अगर आप राइस में काम कर रहे हो, या फिर आपका ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, जो भी कुछ बिजनेस है, राइट, तो आपकी जो प्रोफाइल होगी लिंक्डइन पे, अभी आप ड्राई फ्रूट के लिए कुछ भी वहां पे डाल सकते हो ना। आपकी अगर कंसाइनमेंट गई, डोमेस्टिक जाई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके पैकेजिंग की फोटोग्राफ डालो। अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलो कि अगर संतोष जी ने उनके पैकेजिंग के फोटोग्राफ्स डाले और कुछ तो लिखा दिस इज द लाइक द कंसाइनमेंट टू हरियाणा, कंसाइनमेंट टू दिल्ली, बस उतना ही लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखा उन्होंने। तो अगर हम जो भी बाकी सारे लोग हैं, ओके भाई जी, बाकी सारे लोग हैं, उनको परसेप्शन क्या आया अभी कि ये बंदा इस प्रोडक्ट में डील करता है ना परसेप्शन। लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं डाला तो क्या परसेप्शन आया? सेम लाइक नीरज जी, आपके लिए आपका जो भी बिजनेस है वो अगर आप वहां पे प्रैक्टिकली कर रहे हो तो जस्ट पोस्ट ऑन दैट। और अगर हम, मतलब मैं नहीं कहूंगी कि आपको ही करना चाहिए, आउटसोर्स इट या फिर टीम को काम को लगाओ, लेकिन वो करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर योर बिजनेस, राइट। तब जाके लोग आपको जब भी फॉलो करेंगे ना, तब उनको बैकएंड पे पता है कि यू आर द राइट पर्सन, यू आर एक्टिव इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तब जाके वो पता चलता है। And it is not specific about the product, right? The second thing is, आप इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो। सोशल मीडिया के लिए फर्स्ट मैं रिकमेंड करूंगी लिंक्डइन पे रहो, बिकॉज लिंक्डइन इज द प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। ओके, लिंक्डइन पे भी मैं और एक बताऊंगी, आपका खुद का प्रोफाइल पहले बनाना पड़ेगा आपको, मतलब इंडिविजुअल प्रोफाइल लिंक्डइन पे पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद क्रिएट अ कंपनी पेज। ओके, वहां पे एक ऑप्शन होता है, तो वहां पे जाके क्रिएट अ कंपनी पेज, तो आप अपने कंपनी को भी प्रमोट करोगे साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें हो। डबल कहाँ पे मतलब पोस्टिंग करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर एक डाला तो वहां पे जस्ट शेयर करो, मतलब वो भी चल सकता है शुरुआत के लिए, ठीक है। तो पहला इंडिविजुअल पेज एंड देन द सेकंड इज, ओके महेश जी, नो इश्यूज, यू कैन कंटिन्यू एंड वी विल शेयर यू द रिकॉर्डिंग्स। ओके मैडम, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये हुआ, मतलब पहले अपना खुद का इंडिविजुअल प्रोफाइल बनाओ, देन द क्रिएट पेज करो, कंपनी का पेज, और वहां पे एक्टिव हो। दिस इज द वन। द सेकंड इज इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपके प्रोडक्ट अगर B2C नहीं है तो आप नहीं हो सकते, B2B पे भी बहुत सारे असाइनमेंट्स वहां पे है। इनफैक्ट लाइक पीपल आर फॉलोइंग फ्रॉम अदर कंट्रीज आल्सो, बिकॉज इट्स अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो आपको वहां से, मतलब ये है ना कि मैं कहूंगी सारी एक्टिविटी सिर्फ लीड जनरेशन के लिए नहीं होती, ये भी समझ के चलो। सारे सोशल मीडिया पे मैं इसीलिए एक्टिव नहीं रहूंगी कि मुझे लीड ही चाहिए। लाइक मैंने क्या कहा, लिंक्डइन से आपको लीड तो मिलेंगे, people are following, companies are there, so might be you will get the leads also for your business, for the B2C and B2B also, both majority B2B मिलेंगे, okay? लेकिन अदर प्लेटफॉर्म से आपका प्रेजेंस बढ़ाने के लिए अदर प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं। सो हमेशा टारगेट ये मत रखो कि आपको लीड जनरेट करने के लिए यूज किए जाएंगे,
लेकिन प्लेटफॉर्म को आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए भी यूज किए जाएंगे. सो यू शुड हैव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, तो वहां पे पोस्ट करते चलो ताकि उससे आपकी विजिबिलिटी ज्यादा बढ़े. राइट, ट्विटर इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग. 2 लाइन भी ट्वीट कर सकते हो ट्विटर पे, लेकिन हैव ऑन ट्विटर ऑल्सो. ट्विटर भी बहुत ग्लोबली कनेक्ट करता है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद फेसबुक आता है, तो फेसबुक पे भी एक्टिव रहो हो सके. और दूसरे आगे वाली अगर चीज में पता हो तो आप बोलोगे कि भी 4-5 प्लेटफॉर्म, इतना मटेरियल कहाँ से कंटेंट क्रिएट करें, इतना एक्टिवनेस कहाँ पे दिखाओ, एक पे नहीं हो रहा है तो इतने 4 कैसे करें, ऐसे भी आपको लगेगा. लेकिन डोंट वरी अबाउट दैट. शुरुआत के लिए मैं सजेस्ट करूंगी आपको कि एक कंटेंट जो एक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हो वही कॉपी पेस्ट सारे चीजों पे करो. ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. अगर आप लिंक्डइन पे कुछ डाल रहे हो ना, वही कॉपी करके, हाँ यस संतोष जी, वही कॉपी करके फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे डालो, इंस्टा पे डालो, कोई इशू नहीं उसमें. यस यू हाँ कैन. मैडम. हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. हाँ. तो अगर हम सीरियस है और हम बिजनेस करना चाहते हैं, अल्टीमेटली देखा जाएगा ये एक बिजनेस है. हम अगर काम करना चाहते हैं, मतलब किसी के अंडर कोई नौकरी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस का रिलेटेड डिस्कशन हो रहा है, तो बिजनेस अगर हम कर रहे हैं, हमको अगर कोई नहीं जानेगा तो हम फिर कर क्या रहे हैं. और जिसके लिए इतना सारा, हाँ, जिसके लिए इतना सारा ये चीज बताया जा रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इनके थ्रू अगर हम लोग जाएंगे तो लोग हमको जानेंगे, हमारे बारे में इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा उन लोगों को, ताकि हम उनके पास पहुंच पाएंगे. ऐसा नहीं है कि खाली कोई, जैसे कि मैंने इंडिया मार्ट भी मैंने टाई अप किया हूँ इंडिया मार्ट के साथ 2 साल के लिए. वो मुझे डोमेस्टिक कस्टमर दे रहे हैं, इवन इफ इंटरनेशनल कस्टमर 25 कस्टमर मुझे दिए थे 1 साल के लिए. वो उनका 25 ईयर्स हुआ था बोल के वो मुझे फ्री में दे दिए थे 25 बाय लीड. लेकिन यही होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं ना, उस रिलेटेड एडवर्टाइज कितना हम कर रहे हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, हम जितना एडवर्टाइज करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं भी वो भी फील कर रहा हूँ. जैसे जैसे शुरू में हमने काजू ला के रखे थे, मुझे जितना जन जानते हैं, मुझे पहले अच्छा लगा कि मैं उसको सजा के रखा मेरे ऑफिस के अंदर. कुछ दिन तक मैंने देखता रहा उसको, सेल करने के बारे में सोचा नहीं. मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं सजा के रखा हूँ. हेलो, हाँ जी. अगर इसको हम लोग जितना एडवर्टाइज करेंगे ना, जितना एडवर्टाइज करेंगे, लोग हमको जितना जानेंगे उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा. मेरा वही कहना था. मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ सबको कि जब तक आप बेचना चाहते हो, उसको अगर प्रमोट नहीं करोगे तो कौन खरीदेगा आपसे. वो कौन सा भी प्रोडक्ट हो. इट इज नॉट अबाउट द डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट, इट इज अबाउट द बिजनेस ओनली. जो भी बेचना है उसको बजाना पड़ेगा ना कि हाँ ये मेरे पास है, तब जाके लोग आपको अप्रोच करेंगे और बायर तभी आते हैं. और दूसरी बात है ना कि अगर कोई आता भी है उसको आपकी जेन्युइनिटी भी पता होनी चाहिए, पता चलनी चाहिए, तब जाके टर्म्स कंडीशन आप रख सकते हो, तब जाके बिजनेस होता है. और अगर आप कुछ भी प्रेजेंस नहीं क्रिएट करोगे तो अभी आज के जमाने में तो कोई आपको पहचानेगा नहीं. दिस द ट्रू फैक्ट. अरे किसी मूवी को भी जाने से पहले हम गूगल को पूछते हैं कि वो कैसी है. होटल को जाने के पहले हम गूगल को पूछते हैं वो कैसा है. तो भी किसी के साथ धंधा करने से पहले गूगल को क्यों नहीं पूछा जाएगा कि वो है भी या नहीं है. राइट, दिस इज द फैक्ट. सो ये जो सोशल मीडिया हमने देखे अभी, तो एक्टिव रहो. जैसे मैंने कहा ना, उसके लिए टिप्स स्ट्रैटेजीज बहुत सारे हैं. हम उसका भी एक सेशन सेपरेटली लेंगे जो मैं खुद फॉलो कर रही हूँ मेरे बिजनेस के लिए, कि वो प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है. राइट, तो वो भी हम करेंगे. लेकिन आज से एटलीस्ट इतना तो करो, अगर किसी के अकाउंट नहीं है सोशल मीडिया पे, वो क्रिएट करो. वो क्रिएट करने के बाद ऑप्टिमाइज करो. ऑप्टिमाइज का मतलब होता है प्रोफाइल को पूरा ऑप्टिमाइज करना. जैसे मैंने अभी बताया, कवर पेज हो, उसका डिस्क्रिप्शन हो, आप क्या कर रहे हो उसको कीवर्ड्स में डालो. दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमाइजेशन. ओके, अगर इनकम्प्लीट प्रोफाइल है तो उसको कंप्लीट करो, क्योंकि प्रोफाइल कंप्लीट होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वन पार्ट. ओके, और उसके बाद फिर उसको एक्टिव रहने के लिए एटलीस्ट सोचो थोड़ा सा, या फिर आप जिस प्रोडक्ट में, जिस धंधे में, जिस बिजनेस में काम करते हो, उसके रिलेटेड लोगों को फॉलो करो. वो क्या कर रहे, उनके पोस्टिंग कैसे आते हैं, एटलीस्ट कुछ तो आइडिया मिलेगा ना आपको कि वो ऐसे पोस्ट डालते हैं या फिर उन्होंने ऐसे पिक्चर डाले हैं. और अगर नहीं भी कर रहे कोई आपकी इंडस्ट्री में, तो मैं कहूंगी तब भी आप करो, क्योंकि वो जरूरत है, आज की जरूरत है वो. राइट, और व्हाई आई विल टेल यू. लाइक यूट्यूब अभी कब से चालू है, 2010 से भी मतलब आगे पहले से चालू होगा, है ना. यूट्यूब चैनल 2010 से भी पहले से चालू है.
बराबर। लेकिन हमें कब पता चला ज्यादा? लॉकडाउन में पता था लोगों को, लेकिन ज्यादा बूम कब हुआ? लॉकडाउन में ज्यादा बूम हुआ, राइट। अभी समझ के चलो कि जो लोग पहले से यूट्यूब पे थे, फायदा किसको हुआ है? दे आर अर्निंग इन करोड़ रुपीज वाया यूट्यूब चैनल ओनली। करोड़ रुपीज का अर्निंग करते वो लोग, क्योंकि उन्होंने उस टाइम से, जब दुनिया को भी पता नहीं था या कुछ लोगों को ही पता था सिर्फ, तब से उस प्लेटफॉर्म पे काम किया है, कंटेंट बिल्टअप करते गए वो। और जब वो एक दिन ऐसा आया कि वो बूम पे गया, नाउ दे मतलब उनका तो स्टार हो गए, वो तो स्टार चमक गए उनके। लेकिन अभी जो लोग उस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनके लिए मेहनत है ना, अभी कंपटीशन बढ़ रही है अभी उनके लिए। तो सेम थिंग मैं सबके लिए कहूंगी, वॉट एवर यूर प्रोडक्ट, डोंट अंडर एस्टिमेट द डिजिटल पावर। वो आज की जरूरत है, क्योंकि वो आज अभी पता चली है मार्केट को कि ये करने की जरूरत है। आगे का वर्ल्ड पूरा डिजिटल होने वाला है, तब जाके आप पीछे रहोगे। मतलब है ना कि 2010 में यूट्यूब चैनल था, वैसे अब हम आज है। तो आज इसको अवॉइड मत करो और बाईपास भी मत करो। नेक्स्ट 2 सालों में आपको पता चलेगा उसका मतलब उसकी पावर कितनी है, कि आपका प्रेजेंस बिजनेस का कितना बढ़ेगा और आपको मतलब बिजनेस कितना हो सकता है, राइट। इसीलिए आज से इसके ऊपर काम चालू करो। दिस इज वन पार्ट। उसके बाद आता है ना कि लाइक कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और है प्रेजेंस बढ़ाने के लिए, वन इज वेबसाइट, सेकंड इज सोशल मीडिया, थर्ड इज लाइक मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल्स, मेंबरशिप ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मैं कहूँ कि आपको लाइक नीरज जी, आपके बिजनेस के लिए अगर आप इंजीनियरिंग में काम करते हो या फिर कोई और भी करता है, टारगेट योर कंट्री फर्स्ट। तो अगर आपने टारगेट किया कि जर्मनी ही टारगेट है हमारा, इंडो, तो जर्मनी अगर मुझे टारगेट करना है तो यू शुड बी अ मेंबर ऑफ इंडो जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। This is the additional advantage. Why? Because Indo-German chamber having the focus of only India and Germany. How to increase the trade from India to Germany and Germany to India. They have the special focus on that. So वो उसके लिए काम करते हैं स्पेशली। तो आपको अपने बिजनेस के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको फाइंड आउट करो और उनके साथ टाइप करो, राइट। और जैसे मैंने इंडो जर्मन कहा, वैसे इंडो अफ्रीका है, इंडो यूके है, इंडो यूएई है, इंडो घाना है, इंडो जर्मन लाइक इंडो नाइजीरिया है, इंडो टांजानिया है। ऐसे बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, बिकॉज दे आर स्पेसिफिक टू दैट पर्टिकुलर कंट्री ओनली। और उनका काम ही होता है कि उस कंट्री को ट्रेड बूस्ट करने के लिए काम किया जाए। सो आपके लिए ज्यादा एडेड एडवांटेज है इफ यू आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन नाइजीरिया ओनली, on Germany only, so that chamber will help you how you can establish your presence in that particular market. They will give you the leads also and they will help you in the process also. So this is one of the advantage. Okay, so become a member. क्योंकि जो मेंबरशिप होते हैं ना बहुत सारी चीजों की, लाइक फॉर एग्जांपल यू आर अ मेंबर ऑफ ग्लोबल फॉर्चून। सो आज एटलीस्ट हम यहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत सारे लोग आपको पता चले, बहुत सारे लोगों की बातें पता चली, कौन क्या कर रहे हैं, तो उससे भी जो थॉट प्रोसेस बढ़ती है। Right, every week we are meeting, so every week we are discussing different topics. So this is the part of membership कि इसकी कनेक्टिविटी का फायदा ज्यादा होता है। तो सेम थिंग गवर्नमेंट के बहुत सारे ऐसे नेटवर्क, मतलब काउंसिल्स या चैम्बर्स या ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन रन होते हैं। So you need to be have a member of that councils or chambers also. So this is also one of the thing. और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ कि अभी PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक है, उनका अगर एग्जीबिशन है, ओके, और एग्जीबिशन के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी होती है। सो इफ यू हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट विथ यू, यू कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रेड फेयर्स आल्सो। व्हाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय डेवलपिंग अदर थिंग्स? सो आप डायरेक्टली जाके पार्टिसिपेट करो एग्जीबिशन में, वहां पे अपने प्रोडक्ट को, कंपनी को शोकेस करो और यू विल गेट द लीड्स, यू विल डायरेक्टली गेट द कस्टमर्स। अभी उसका फायदा क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ मेंबर ऑफ लाइक असोचैम, यू आर मेंबर ऑफ PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐसे अगर जो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स होते हैं, तो ट्रेड फेयर्स में जो भी सब्सिडाइज ट्रेड फेयर्स होते हैं, तो अगर उसका पार्टिसिपेशन कॉस्ट है 1 लाख रुपीज या फिर 1,25,000 रुपीज। सो अगर आप मेंबर हो तो मेंबर के लिए 1 लाख रुपीज है एंड लोकल पब्लिक के लिए 1,25,000 रुपीज है। इसका मतलब क्या हुआ, 25,000 रुपीज यू एज अ पब्लिक यू नीड टू पे एक्स्ट्रा, बट इफ यू आर मेंबर यू विल गेट द 25,000 रुपीज एज अ subsidy, more subsidy from that. So these are the lot of benefits actually government is giving. So लेकिन उसके लिए आपको कनेक्शन में जाना पड़ेगा उनके। उसके साथ साथ बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, वो लीड जनरेट करके देते हैं आपको, बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं उस सेक्टर रिलेटेड, इंडस्ट्री रिलेटेड। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स कि आपको उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद जैसे संतोष जी ने बताया
B2B पोर्टल से। सो अगर आप मोर सीरियस हो धंधे के लिए तो आप B2B पोर्टल से भी कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी बैकएंड अगर नहीं है तो B2B पोर्टल को अभी मत जाओ। और व्हाट इज बैकएंड? अगर समझ के चलो कि इंडिया मार्ट से मैंने कनेक्ट किया, गो फॉर वर्ल्ड बिजनेस से कनेक्ट किया, एक्सपोर्टर्स इंडिया से मैंने कनेक्ट किया, उनका पेड पैकेज लिया और वो अगर मुझे डेली 50 लीड देते हैं, सो अभी वो 50 लीड के ऊपर काम करने के लिए मेरा बैकएंड रेडी है क्या? आस्क दैट फर्स्ट। और अगर वो रेडी है देन गो अहेड विद द पेड पैकेज। नहीं तो क्या होगा, 50 लीड वो तो देंगे, ऐसे 50-50 करके 1000 लीड्स आपके पास बनेंगे, लेकिन 1000 लीड्स के ऊपर आप काम तो कुछ नहीं कर रहे हो। और काम करने का मतलब क्या काम करना पड़ेगा? वो लीड्स जो भी आपको मिलते हैं, आपको रेडी लीड्स मिलते हैं कि दे आर द prospective buyers for your products, they are interested in your product, so you need to convince them and convert as a customer। उसके लिए बैकएंड क्या रन करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पहले आपका प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके उस बायर के पास जब भी आप विजिट अप्रोच करोगे तो वो बायर शायद आपको पहले जानेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा, तब जाके कम्युनिकेशन करेगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सो यू शुड हैव योर प्रेजेंस फर्स्ट। द सेकंड पार्ट इज आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड कंपनी प्रोफाइल, वो पहले आपको बनानी पड़ेगी। और वो जो भी लीड्स आएंगे उसको वो भेजना पड़ेगा, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड कंपनी प्रोफाइल। उस लीड को आपको अप्रोच करना पड़ेगा उससे। फिर आपको वहां पे आपके हैंडल्स दे दो, सो आपके लिंक्डइन हैंडल हो, आपके वेबसाइट का एड्रेस हो, ताकि वो आपके बारे में और ज्यादा जानकारी दे। उसके बाद होता है कि लाइक आपने लीड के लिए फॉलो किया, पहली मेल भेजी। अभी बहुत सारे लोग ये करते हैं ना कि एक मेल भेजते और फिर वेट एंड वॉच कि वो रिप्लाई देगा तब मैं रिवर्ट करूंगा, जैसे उसको ही पड़ी, आपको कोई जरूरत ही नहीं उसकी। हो सकता है कि आपकी मेल स्पैम में गई होगी, हो सकता है प्रमोशन में गई होगी, हो सकता है ब्लॉक की गई होगी, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपकी मेल मिली नहीं मिली वो कैसे पता चलेगा? एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। सो फॉलोअप की सेकंड मेल भी जानी चाहिए। दिस इज द सेकंड पार्ट। मतलब फर्स्ट मेल भेजा, देन द सेकंड इज फॉलोअप मेल भी जानी चाहिए। अभी फॉलोअप मेल भेजने के बाद भी अगर हो सकता है कि कुछ लोग रिवर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं रिवर्ट करेंगे, दैट इज पॉसिबल। ऐसे मत समझ के चलो कि पहले ही इसमें रिस्पॉन्स आता है। अब दिस द मार्केटिंग एक्टिविटी। तो थर्ड टाइम मैं कहूंगी कॉल करो। कॉलिंग से कन्वर्जन जल्दी होते हैं, क्योंकि कॉलिंग से आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उसको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। माइट बी ही इज नॉट द कंसर्न पर्सन फॉर योर ईमेल, सो उससे पूछो फिर हु इज द कंसर्न पर्सन। तो डायरेक्टली कंसर्न पर्सन तक जाओगे तब जाके कन्वर्जन के चांसेस। नहीं तो मेल ऐसे ही घूमती रहेगी किसी के भी पास, तो कोई मतलब ही नहीं उसका, मेल भेजने का भी कोई मतलब नहीं है, राइट? तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप वो फॉलो करना पड़ेगा कि कॉल करो। और कॉलिंग के लिए मैं सबके लिए बताऊंगी, डोंट वरी अबाउट दैट, लाइक आपकी लैंग्वेज, आपको बोलना आता है नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। पहला कॉल तो करना पड़ेगा आपको। और पहले कॉल में मैं कहूंगी चलो हेलो बोलेंगे सिर्फ हम, बाकी कुछ नहीं बोलेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कट कर दो कॉल। हेलो बोलने तक का कॉन्फिडेंस तो जुटाओगे। सेकंड कॉल में हेलो सर, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम इंडिया, दिस माय कंपनी, इतना बोल सकते हो। थर्ड कॉल में शायद और जाके वो आगे जाके बोलोगे, सो दीज आर माय प्रोडक्ट्स, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एंड वी कैन सप्लाई यू। सो कुछ ना कुछ तो आगे चलेगा। एटलीस्ट फर्स्ट कॉल तो करना पड़ेगा उसके लिए, राइट? फर्स्ट एटलीस्ट इनिशिएट द डायलॉग, इनिशिएट द एटलीस्ट कम्युनिकेशन, कुछ तो चालू करो तब जाके आगे जाओ। और फिर मैं कहूंगी कि ये सब करने के बाद होता है ना कि 100 कॉल में से शायद फिल्टर होंगे लोग, 10 से आपको रिवर्ट करेंगे, 10 में शायद 5 ही रिवर्ट करेंगे कि जिनको सच में इंटरेस्ट है आपके प्रोडक्ट में। फिर 5 को जब भी आप कोटेशन दोगे, कॉस्टिंग करोगे, वो सब बातें सब हम सीखेंगे। वो सब करने के बाद शायद हो सकता है कि 2 ही बहुत इंटरेस्टेड होंगे और वो फाइनली निगोशिएट करके ऑर्डर कन्वर्ट करेंगे। एंड दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ द मार्केटिंग एंड बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस रन करो, कौन सा भी करो, कौन सा भी प्रोडक्ट लो, कौन सा भी सेक्टर लो, कौन सा भी मार्केट लो, दिस इज द बेसिक सिस्टम ऑफ द बिजनेस। उसको कोई बाईपास नहीं, कोई भी नहीं। मैं करूं, आप करूं, कोई या टाटा बिरला अंबानी भी करे, उनके लिए भी सेम सिस्टम चलती है। उनको भी अगर किसी कस्टमर को कन्वर्ट करना पड़ता है तो ऐसे मत समझ के चलो कि टाटा है तो उनको इजीली काम हो जाएगा, क्योंकि उनके कस्टमर हायर है ना, फिर तो उनको भी कन्विंस करना पड़ेगा ना उसको, क्योंकि कंपटीशन भी उनके लिए। मतलब ये सेम प्रोसीजर है सबके लिए, बस इतना फर्क क्या है कि आप स्टार्टअप हो, जीरो हो उस प्रोसीजर के लिए। मैं आपके लिए जीरो नहीं बोल रही हूँ, इस प्रोसीजर के लिए आप जीरो हो। इसीलिए आपको लगता है कि ये बहुत मतलब अलग है, या फिर कैसे करे, सच में होगा नहीं होगा, नहीं होता है तो फिर हम डिप्रेस हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। लेकिन मैं कहूंगी इसके बाद जब आप मास्टरी पे आओगे तो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
अगर आज 100% करने की जरूरत है, शायद कल जाके 50% ही करोगे तो भी इनफ है। उसके बाद सिर्फ वो मेंटेन करने के लिए 10-20% करना पड़ता है, बाकी ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आज मैं कहूंगी पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ता था, आज मेरे लिए 2 मिनट का काम हो गया है, बिकॉज आई एम यूज्ड टू दैट। आज मैं यूज्ड टू हो गई उस सारी चीजों के लिए। पहले मुझे लिंक्डइन पे पोस्ट डालने के लिए कितना सोचना पड़ता था कि मैं क्या डालूं उसके ऊपर, तो मुझे भी पता नहीं था वो। लेकिन आज सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, दिन में मैं 4 पोस्ट भी डाल सकती हूँ। लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो प्रोसेस मैंने की, वो जर्नी जो गई, वो करनी पड़ेगी ना आपको। अभी मेरे लिए ठीक है, एज अ स्पीकर माय रोल इज डिफरेंट, तो मुझे वो खुद करना पड़ता है। मैं कहूँगी आपको जरूरत नहीं कि आप ही को करना है, हायर द एक्सपर्टाइज, आउटसोर्स करो, नहीं तो अपने इन हाउस टीम को डेवलप करो, किसी को भी डेवलप करो, किसी को भी साथ में लो, लेकिन डोंट बाईपास दिस ऑल, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। और फिर मैं कहूंगी आप कितना भी एक्सपोर्ट सीखो, प्रोसीजरल पार्ट पूरा बाय हार्ट आपको आएगा, तो भी नो यूज ऑफ दैट। अगर बायर ही सामने नहीं आया तो किसके लिए कर रहे हो सारी चीजें, सीख किसके लिए रहे हो? मेरे पास कोई बेचना, किसको बेचना है वही सामने नहीं है मेरे, तो मैं किसके लिए सारी चीजें कर रही हूँ? ये श्योर सर, नो इश्यूज। गॉट द पॉइंट? Okay, ma'am. Thank you. I got to go. Sorry. ओके, नो इश्यूज। अभी हम मतलब एंड ही कर रहे हैं वैसे 5 मिनट में। Okay, ma'am. Thank you. Thank you. हाँ चलो, डाउट होगा और पूछो। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आओगे ना, तो मैं ये पहले पूछूंगी ना, जितना मैंने कहा उतना किया या नहीं किया। हेलो मैम। हाँ बोलो। मैम एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि जैसे जो हमारा जो कंपनी है गजानन ट्रेडिंग कंपनी, उसका जो प्रोप्राइटरशिप है वो मम्मी के नाम पे, मम्मी के है, तो हमें लिंक्डइन पे अकाउंट जो है वो मम्मी का ही खुलना होगा? मतलब मम्मी का कोई यूज ही नहीं है, कौन पूछने आ रहे हैं देख कि तुझे ओनर कौन है उसका। ओके ओके, मतलब वो अगर मैं मेरे नाम से ही करूँ और उसमें कंपनी पेज अगर ऐड करूँ वो तो होगा? ओके, यस, ओके मैम। Who is the face of company? You just show that, show them. ओके ओके, डॉक्यूमेंट्री कोई भी हो सकता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। चलो क्वेश्चन। यस एनीवन? बस है ना कि फॉलो करते चलो, और इट शुड हैव अ कंटिन्यूटी आल्सो। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन मैं कहूंगी एवरी डे होता है ऐसे कुछ नहीं, लेकिन अगर वीकली 2 बार करते हो तो कंटिन्यू इन द एवरी वीक 2 टाइम्स, दैट इज द कंटिन्यूटी। उसको बाईपास नहीं करना है, आज किया फिर 4 हफ्ते नहीं किया, फिर से जगह मतलब किसी ने बोला अभी करना है तो फिर से किया, उसको कंटिन्यूटी नहीं कहा जाता। मतलब डेली करना ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप जो भी डिसाइड करोगे शेड्यूल उसको फॉलो करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज marketing is the main part of the business, you can't avoid that। बाकी हम सब सीखेंगे, लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं हुआ तो धंधा क्या करोगे, और किसके लिए सीख रहे हो ये सारी चीजें? फिर तो मैं सबके लिए कहूंगी, जो भी हो, आज आप धंधा करने वाले हो नहीं हो, डजेंट मैटर फॉर दैट, आज से एटलीस्ट अपना बेस बनाते चलो। शायद आप धंधा 1 साल के बाद करोगे, 2 साल के बाद करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, लेकिन बेस अभी से बनना चाहिए, क्योंकि टाइम की वैल्यू है और आप मिस कर रहे हो, टाइम की वैल्यू को लूज कर रहे हो, समझ रहे हो? ओके, सो बेसिक के लिए ऑनलाइन कोर्सेज को कंटिन्यू करो, मतलब स्टार्टअप के जो भी सारी चीजें हैं वो वहां पे क्लियर हो जाएगी, राइट? और आज जो भी मैंने कहा वो बहुत प्रैक्टिकल है, उसके ऊपर पहले काम करो। उसमें कोई भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो भी मुझे बोल देना। इस हफ्ते में अगर हो सके तो मैं वो सेशन आपके लिए लूंगी कि सोशल मीडिया पे क्या क्या करना पड़ता है, या फिर कैसे आप पोस्टिंग कर सकते हो, या क्या क्या कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को वो भी पता नहीं होगा, तो लिंक्डइन भी हो या इंस्टा हो या बाकी सारी चीजें, ठीक है? ओके मैम। ओके, चलो फिर is this ओके, नो इश्यूज। एसपी मतलब कौन है एसपी? ओके शुभम, ठीक है, कोई बात नहीं, यू कैन कनेक्ट मी।
ओके चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक्शन, बाकी कुछ मत करो लेकिन एक्शन लो। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके Thank थैंक you. यू। एंड संतोष जी, मैं वो चेक करती हूँ आपने जो भेजा है Thank एंड विल you. अपडेट। राइट, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके चलो, थैंक यू। थैंक यू मैम। ठीक है।